ग्लोबल स्टॉक मार्केट में 70% से ज्यादा ट्रेड्स एआई यानी कि एल्गोरिदम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, विच मीन्स मशीन्स आर ऑलरेडी ट्रेडिंग मोर देन ह्यूमंस. सो इफ एआई इज दिस पावरफुल, तो रिटेल ट्रेडर्स का फ्यूचर क्या है? Today, we'll understand the ground reality. So, hello everyone, welcome to the Genius Wealth Show. I'm Himangi Prajapati, and today we are having Mr. CA Shailesh Wadhwania as the guest, and he is from the finance background. He understands the practical market, and he, of course, understands the numbers and the ground reality both. So, it's going to be a very informational podcast. Watch this till the end if AI is a topic that excites you, and if you are also from the finance background. Please help me welcome Mr. CA Sailesh Wadhwani on the Genius Wealth Show. One simple question I have is AI actually करता क्या है stock market में? Like you teach AI and you are also from the finance background. So can you help the viewers understand कि जब हम बात करते हैं कि stock market में AI है, it's helping a lot of people, institutions are using it. So what it is actually doing? Understood. Your question is really nice, but to answer this question to our audience, which may or may not, because I don't know what kind of audience today we have. Some of the audience which already know AI very well, but some of there are don't know too much. So I want to explain from the basic one. So let's start from the basic one only. That what's happening right now in the AI world, not just the stock market basis, but in the AI world. So what's happening? So let me tell you about you when you go to a Google. जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको कि भाई अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, देन विच स्पोर्ट्स चैंपियनशिप डू यू लाइक टू विन? आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको सबसे हाईएस्ट लेवल की चैंपियनशिप में, फॉर एग्जांपल यू आर अ रनर और मे बी यू आर अ एथलीट, तो इफ यू वांट टू, you may have a some kind of a dream, if you are a runner, that one day I'll go to that championship. So which one is that championship? I'm asking you a question about that. So have you heard about Olympics? Yeah, yeah. Okay, so do you consider Olympics is the best best sports championship in the world? Yes, of course, Okay. yes. And okay, the same way there is Match Olympiad, International Match Olympiad called IMO, and Okay. I'm talking about this in July 2025. I'm not talking about this today, February 2026. I'm talking about this in July 2025. So what happened in that IMO championships where all elite professional मैथ्स, बचपन से थोड़ा मैथ्स नहीं आता था, इसलिए सर और टीचर की डांट तो पड़ती ही थी, पर स्कूल में आने के बाद फिर 10th पास करने के बाद फिर भी मैथ्स नहीं आता था, इसीलिए आज मैं सीए हूं और साइंस बैकग्राउंड में नहीं गया हूं. अगर साइंस बैकग्राउंड में जाता तो मेरा एक और ड्रीम था कि मैं कंप्यूटर फील्ड में जाता, पर आज Hmm. not in the science background, not coming from the science background, I'm coming from the hardcore commerce background, and I'm a chartered accountant. So why I became a chartered accountant? Just because of a maths. Okay. Let me tell you, okay? So I didn't know how to under मैथ्स मुझे पहले से समझ में नहीं आता था, और कितने सारी हमारी ऑडियंस होगी जिसको मैथ्स समझ में नहीं आता होगा. तो ये जो मैथ्स है इतना हार्ड है, और दुनिया के elite level of professionals, for example from India, from China, from US, from Europe, all over the world, elite professionals who are who are already elite and wants to fight for a championship. So जैसे ओलंपिक होता है वैसे ही आईएमओ होता है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड. वहां पर क्या होता है कि भाई elite level of professional for maths come together and sit together and fight for a championship. Okay. Am I right? Gold, silver, or maybe a bronze. They all wants to have this kinds of trophies, but so few people are get these kinds of opportunities and trophies out of those elite professionals. तो एक फॉर एग्जांपल वहां पे क्या हुआ कि भाई elite level of professional आए और उन्होंने एग्जाम दी, और साथ में दो टेबल ऊपर एक कंप्यूटर रखा हुआ है जिसमें जेमिनाई है. जेमिनाई मींस गूगल का एआई, और दूसरे टेबल पे चैट जीपीटी है. चैट जीपीटी मींस ओपन एआई का एआई. Yes. दोनों टेबल में, और जो पेपर एग्जाम के लिए किसको दिया, जो पेपर एग्जाम के लिए जो elite लेवल ऑफ प्रोफेशनल रियल ह्यूमंस को दिया, वही पेपर किसको दिया, ये दोनों कंप्यूटर को, जिसको यानी एक जेमिनाई को और एक ChatGPT को. चैट जीपीटी को, दोनों को पेपर दिया. और आपको पता है आई एम टॉकिंग अबाउट 2025 जुलाई, दोनों गोल्ड मेडल लेके आए. जो Okay. चैंपियंस को भी साथ में रहकर उनको हराया और दोनों गोल्ड मेडल लेके आए.
Hmm. एंड दिस वाज इन जुलाई 25। जैसे ही आईएमओ होता है वैसे ही इंटरनेशनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओलंपियाड भी अलग अलग से होते हैं। इन 2025 इट डिडंट हैपन, but in this January and February this happened, and in this international chemistry olympiad and international physics olympiad both ChatGPT and Gemini got gold। Wow. तो ये आप समझ रहे हो कि आज का एआई कहाँ जा रहा है। जो एलीट लेवल के प्रोफेशनल है उसके साथ भी वो फाइट करके उसके साथ भी फाइट करके गोल्ड मेडल ला रहा है। Hmm. तो ऐसे ही जस्ट आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू दैट वेयर वी आर राइट नाउ, सो वी हैव टू बिकम सो पॉजिटिव एंड वी आर अ यूजर, वी आर जनरली वी इंडियन आर कंसिडर्ड टू बी द जुगाड़ूज। Yeah. So, कहीं से कहीं ना कुछ भी ना कुछ जुगाड़ करके हम लोग कहाँ तो एआई सीख लेंगे, कहाँ तो कुछ ना कुछ, भले दुनिया कहीं भी स्टार्ट किया हो। जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आल्सो वी हैवंट स्टार्टेड, बट वी वर Hmm. कंसिडर्ड द लीडर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन आईटी Hmm. फील्ड्स। द सेम वे भले किसी ने भी स्टार्ट किया हो, पर हम इंडियन जुगाड़ू कुछ ना कुछ करके एआई वर्ल्ड में आज नहीं तो कल, आज अभी तो फ्रॉम गवर्नमेंट सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। आपने सुना होगा एआई समिट हुआ दिल्ली में। Hmm. Hmm. Yes. तो Yes. सेम वे मैं आपको ये थोड़ा और समझाना चाहूंगा कि आप अगर गूगल में सर्च करोगे टेरेंस ताओ। कौन? टेरेंस ताओ। टेरेंस ताओ, यू कैन आंसर TERENCETAO। ये ताऊ जी कौन है? ये ताऊ जी है मैथ्स में जो मिनिमम 3 टाइम्स आईएमओ विनर है। 10 Okay. साल की उम्र में ही गॉट द लेवल ऑफ पीएचडी इन मैथ्स। इतना इंटेलिजेंट बंदा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल ह्यूमन का आईक्यू कितना रहता है? 100। मैडम आपका शायद थोड़ा ज्यादा होगा, 130, 135, 40 होगा। मेरे जैसे का मेरे जैसे का 80, उससे ज्यादा तो है नहीं। तो मेरे जैसे बंदों का जो 80 आईक्यू लेवल है, तो ये आप जानते हो टेरेंस ताऊ जी का आईक्यू लेवल कितना है? मेरे से 3 गुना। 8 तरी Oh. 24, उनका 230 आईक्यू है। 230। सो ही इज कंसिडर्ड टू बी द लिविंग लेजेंड्स इन द मैथ्स। आज अगर मैथ्स में किसी को पूछना जाओ कि भाई कौन सबसे लिविंग लेजेंड्स, वन ऑफ द लिविंग लेजेंड्स, नॉट वन ऑफ द लिविंग लेजेंड्स फर्स्ट बेस्ट लिविंग लेजेंड्स, बट वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन ऑल ओवर टाइम। सो उनका आईक्यू 230 है, और वो क्या बोलते हैं कि भाई आज मैं एआई आई एम यूजिंग एज माय को पायलट व्हेनेवर आई हैव अ न्यू प्रॉब्लम्स to solve a maths problem to solve. I use AI, I take help of the AI, I use as my co-pilot। तो मेरे Wow. जैसे बंदे का जिसका IQ लेवल 80 है और आपका 140 अप, तो वो तो क्या ही कर सकते हैं एआई से, आप सोच सकते हो। Hmm. Hmm. तो ये लेवल का ऑलरेडी इन द एआई वर्ल्ड्स आर हैपनिंग, एंड वी आर इंडियन सो जुगाड़ू, वी बिकम, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है मैडम जी। वी इंडियन के पास कोई रास्ता नहीं होता है। इधर वी हैव टू अडेप्ट और वी हैव टू डू नॉट अडेप्ट, बट वी इंडियंस ऑलवेज अडेप्ट। कोई Hmm. रास्ता नहीं होता है हमारे पास, हमको अडेप्ट करना ही पड़ता है। आपने अगर देखा होगा पिछले हिस्ट्री में, हमको अडेप्ट करना ही होता है। और हम लोग इंडियन इतने इंटेलिजेंस होते हैं, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में घुमा हुआ हूँ और मुझे पता है कि भाई वो सबके साथ काम किया हुआ है। इन अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियन, सबके साथ काम किया हुआ है। और मुझे ये लग रहा है कि भाई जो इंटेलिजेंसी एक पान के गल्ले पे बैठने वाले इंसान में होता है, वो इंटेलिजेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है। आज जो अहमदाबाद के पान के गल्ले में जो इंसान बैठता है, उसका एक्सपीरियंस एंड नॉलेज और उसका विजडम जो है, मुझे नहीं लगता है कि किसी ऑल ओवर वर्ल्ड में पीएचडी लेवल वालों के पास भी होगा। बस वी आर नॉट यूजिंग, बट सम ऑफ द पीपल इन इंडिया हैज टू यूज एंड दे आर यूजिंग, एंड दैट्स व्हाई वी आर लीडिंग एंड 110%। आई एम सो पॉजिटिव दैट वन डे वी विल लर्न एआई thoroughly and we will become a world power in AI। Yes. ये आज हो रहा है। अभी मैडम आपका क्वेश्चन था कि भाई शेयर मार्केट में क्या हो रहा है। Hmm. Hmm. तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इतना इतना आईएमओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तेरेंस ताऊ जी भी यूज कर रहे हैं। तो मैं इस एआई वर्ल्ड में 10 सालों से काम कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी फील्ड में 10 सालों से काम कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से व्हाट आई थिंक कि आज का जो जेमिनाई एआई है, ये मैं जुलाई अगस्त की बात कर रहा हूं जब मैं ये बताता था। आज तो मैं बता ही नहीं सकता हूं इतना आगे, पर फिर भी मैं जुलाई की बात करूंगा। मैं आज का जो एआई है, जो मेरे पॉकेट में है, मेरे मोबाइल में है, मेरे मोबाइल के एक छोटी सी ऐप में जेमिनाई है, एक छोटी सी ऐप में चैट जीपीटी है, उसका नॉलेज एंड विजडम इफ आई कंसीडर टुडे कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास आज पीएचडी डिग्री है पर्टिकुलर डोमेन, ओके, Hmm. पीएचडी डिग्री प्लस 25 to 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कितना?
25 to 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो बंदा आज का जेमिनाई यानी मेरे पॉकेट में है। Hmm. तो मुझे दो चीजें आनी चाहिए सबसे पहले। इफ आई वांट टू लर्न एआई, तो सबसे पहले हाउ टू यूज एआई मींस मुझे काम कैसे निकलवाना है उससे, काम कैसे निकलवाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, पर जनरली लोगों को समझ में क्या आता है कि प्रॉम्प्ट। सेकेंड थिंग, राइट टूल फॉर राइट यूज, क्योंकि डेली बेसिस पे इतने सारे एआई टूल आते हैं, 50 100 अनगिनत टूल आते हैं नए नए स्पेसिफिक टास्क के लिए, कि भाई यू कैन नॉट यूज फॉर एवरीथिंग चैट जीपीटी। अगर आपको कुछ काम करना है शेयर मार्केट में तो चैट जीपीटी नहीं लगेगा सब चीजों में। Hmm. तो उसके लिए अलग अलग एआई टूल्स आते हैं मार्केट में, वो आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल रहना है। कोई यूट्यूब पे जाओगे, आप जैसे पॉडकास्टर है, एआई में भी बहुत सारे पॉडकास्टर है, उसको फॉलो करो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि भाई एआई वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो अभी शेयर मार्केट में आते हैं कि भाई मेरे पास मेरे पॉकेट में 30 साल का बंदा एक्सपीरियंस वाला पड़ा है इन ईच एंड एवरी डोमेन। तो शेयर मार्केट वाला मींस फाइनेंस वाला डोमेन वाला बंदा भी मेरे पॉकेट में है, तो मुझे उससे क्या करवाना है, कैसे काम निकलवाना है, वो सीखना है। Hmm. मेरे पास मेरे पॉकेट में टैक्स प्रोफेशनल, अकाउंट प्रोफेशनल्स, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, कोडर एंड अलग अलग टाइप्स के इंजीनियर, आपके जैसे पॉडकास्टर, सब मेरे पॉकेट में है। पर मुझे काम निकलवाना नहीं आता है, तो मैं कैसे काम निकलवा पाऊंगा। मुकेश अंबानी जी ने अंबानी जी ने 30 साल का बंदा हायर किया हुआ है, जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, पीएचडी नॉलेज है, सब कुछ है। पर वो मुकेश अंबानी जी उसको बुलाएंगे और बिठा के रखेंगे तो फिर क्या फायदा। Right. उनको काम निकलवाना आता है, आज वो इसीलिए अंबानी जी है। तो वैसे ही 100%. अगर मेरे पॉकेट में 30 साल का बंदा जिसके पास फाइनेंस का नॉलेज हो, कोडिंग का नॉलेज हो, तो मुझे काम निकलवाना आना चाहिए। और काम कैसे निकलवाते हैं आज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, राइट टूल फॉर राइट यूज भी सीखेंगे। वो चीज मुझे आती है, फॉर एग्जांपल काम कैसे निकलवाना है और राइट टूल फॉर राइट यूज, थोड़ा थोड़ा आज मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वो मुझे आता है मेरे, तो मैं वो काम निकलवा पाऊंगा। और जनरली एआई फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पर $20 अगर देते हो आप, अभी तो $20 भी नहीं है, 400 रुपये में भी मिलता है, पर आई Hmm. प्रिफर प्रो प्लस प्लान। वो अगर आप बाय करते हो तो आप सोच भी नहीं सकते हो, यू आर वन ऑफ द प्रोफेशनल्स और मे बी योर बिजनेसमैन और अ पर्सन्स हु आर यूजिंग एआई इन अ प्रॉपर मैनर। Hmm. तो आज हम लोग, तो मेरे मेरे पास अगर कोडर है, मुझे ये बताओ मैडम जी, एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम इज नथिंग बट फॉर एग्जांपल एक मैथ्स फॉर्मूला है। तो वैसे ही जैसे अलग अलग हमारे इंडिकेटर्स रहते हैं, वो पूरे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, पीछे मैथ्स काम करता होता है जनरली। Hmm. एल्गोरिदम्स एक फॉर्मूला होता है, इतना समझ लो, मैथ्स का फॉर्मूला होता है वन, वन और वन लिखा हुआ है, बीच में प्लस करते हैं तो प्लस वाला वो जो होता है वो फॉर्मूला होता है इक्वल टू टू। तो ये जो फॉर्मूलाज होते हैं अलग अलग, आपने फॉर्मूलाज तो पढ़े ही होंगे, वो फॉर्मूलाज होते हैं, वो बड़े बड़े लेवल पे जो फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल बेस पे मुझे उसका प्रिडिक्टिव चार्ट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, लोगों ने बनाए हुए हैं फॉर्मूला, और उसी को वो फॉर्मूला को, वो मैथ्स फॉर्मूला को कन्वर्ट किया हुआ है कोडिंग लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर, कोडिंग लैंग्वेज कंप्यूटर सीख पा। तो मेरे Hmm. पॉकेट में आज 30 साल का कोडर, 30 साल के एक्सपीरियंस वाला कोडर है, तो उसको मुझे काम कैसे निकलवाना है अगर वो आता है, तो आई कैन यूज इट। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े बिग बैंक्स, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स, बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स और सब कुछ क्या बड़े बड़े एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। Hmm. वो कौन बनाता था? कोडर्स बनाता था, जनरली मैथमेटिशियंस एंड कोडर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स, थोड़े तीनों मिक्स बना के बनाते थे। और आज Hmm. मेरे पास फाइनेंस का नॉलेज है, तो मैं उसी को पूछूंगा कि यू बिकम माय पीएचडी फाइनेंस प्रोफेशनल। आज मेरे पास थोड़ा सा खाली इतना पता है कि भाई कोडिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो मेरे पास वो कोडर्स जो पढ़ा हुआ है 30 ईयर्स वाला, आज मेरे पास मैथ्स वाला, मैथ्स में तो वो भी मेरे पास 30 ईयर्स वाला एक्सपीरियंस वाला मैथ्स पढ़ा है। तो मुझे काम कैसे निकलवाना है, तो फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गो एंड फाइंड आउट, उसको पूछूंगा मैं कि भाई ये जो मुझे ये काम करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना है कि Hmm. रिलायंस का स्टॉक, तू जो हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट कर, तू कहां से करेगा वो मुझे पता नहीं है, तू मुझे बता कि भाई ऐसे ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं कलेक्ट करवाऊंगा, तुझे हेल्प करूंगा, या फिर तू ही कलेक्ट कर, क्योंकि देयर आर टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, आई शो यू। हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट कर सकते हो, फॉर कहां से कलेक्ट करते हो, उसको पूछूंगा, तो उसको बोलूंगा हाँ, यहाँ से कलेक्ट करते हैं। फिर उसको पूछोगे तू ऐसा, क्योंकि तू कोडर है और मैथ्स प्रोफेशनल है, तू कुछ ऐसा एल्गोरिदमिक एल्गोरिदम बना जिससे मैं अगले 3 दिन का रिलायंस का स्टॉक प्रिडिक्ट कर सकूं। Hmm. क्या लगता था, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगते थे जिससे हमें $1000 खर्चा करना पड़ता था, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक यूज कर पाते थे। आज मेरे पॉकेट में वो पड़ा है,
बस मुझे खाली थोड़ा सा नॉलेज हो तो आई कैन यूज इट। अभी आपको समझ में क्या आया है कि भाई ये जो एल्गोरिदमिक है वो जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स मींस जनरली जिसने बनाया, मैंने बनाया, तो मेरा मन किया मैंने डाल दिया ऑनलाइन, जो उसको भी यूज करना है वो करो। बड़े बड़े एल्गोरिदम ओपन सोर्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और जनरली 90 80 टू 90% एल्गोरिदम्स आर जनरली जो बहुत बड़े बड़े होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बस हमें पता नहीं होती है Hmm. और कैसे यूज करना वो पता नहीं होती है। तो आज मैं चैट जीपीटी को या जेमिनाई को जाके या क्लॉड को जाके पूछूंगा कि भाई ये कैसे यूज करना है, तो मुझे स्टेप बाय Okay. थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। वो जो स्टेप्स देता है उसे धीरे 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 समझना है, 2-4 बार एक्सपेरिमेंट्स करना है, एक्सपेरिमेंट्स करो, जुगाड़ू बनो, और Hmm. तब इसका मतलब कि वो नॉलेज आई कैन यूज। तो शेयर मार्केट में नाउ यू कैन डेवलप योर ओन एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर, क्योंकि कोडर्स मेरे मेरे पॉकेट में। Hmm. You can develop your own, but you can use those algorithms which are already available in the market at a free of cost, open source में दिखाऊंगा आपको। तो आज ये हो रहा है शेयर मार्केट में, यानी you can do anything which were doing by big investment bankers and big hedge fund managers। जो वो करते थे, जो वो करते थे, आज आप कर सकते हो, भले आपके पास नॉलेज ना हो, विद द हेल्प ऑफ एआई वो आज हो रहा है। Hmm. Yes। So, realistically बात करते हैं कि let's say a 20-25-year-old trader is watching this video and उनको start करना है AI use करना in their day-to-day trading life और investing life. So, what can be the practical steps? क्या possibilities हो सकती है और वो कैसे start कर सकते हैं? ओके, अंडरस्टूड। तो मैडम जी मुझे इतना बताइए कि भाई अगर आपको रियलिटी ट्रेडर और मे बी यू वांट टू बिकम अ एलीट प्रोफेशनल्स इन दिस शेयर मार्केट, आपके पास आपके पॉकेट में पड़ा है, अपन ये रियलिटी में कैसे यूज करते हैं मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में बहुत बढ़िया काम करना चाहते हो, तो क्या 3 चीजें हैं आपको आनी चाहिए? Hmm. क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए? Technical analysis, fundamental analysis and sentiment analysis. वाह वाह, ग्रेट मैम, आपको तो सब पता है। तो ये 3 चीज अगर मुझे आ चुकी है और मैं ये 3 चीज का मास्टर हो जाऊं, तो मैं ये बता सकता हूँ कि भाई आज मुझे थोड़ा थोड़ा तो शेयर मार्केट में काम करना आता है। Hmm. सही है। तो ये जो 3 चीजें हैं उसमें से सबसे पहले हम लोग लेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। क्या Okay. लेंगे? फंडामेंटल एनालिसिस। सो फंडामेंटल एनालिसिस के सबसे पहले मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना हो तो मुझे क्या चाहिए? किसी कंपनी का बैलेंस शीट चाहिए। बैलेंस शीट में क्या चाहिए? इनकम स्टेटमेंट भी चाहिए, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे उसका इवैल्यूएशन करना है। वो जनरली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल करते हैं। आज मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप भी कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। Okay. तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक बैलेंस शीट चाहिए जो जनरली अवेलेबल होती है एनुअल रिपोर्ट में, आपके पास एक्सेल में नहीं होती है। Hmm. आप ये अगर आपको कैलकुलेट करना है फंडामेंटल एनालिसिस पूरा, क्या क्या करते, क्या स्टेप लगते हैं, मैं आगे बताऊंगा। पर सबसे पहले अगर आपको करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मुझे रॉ डेटा चाहिए। और रॉ डेटा में क्या चाहिए? मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चाहिए? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये Perfect. 3 चीज चाहिए। और ये 3 चीज सिर्फ एक साल की नहीं चाहिए, मुझे कंपैरिजन करना है। तो से फॉर एग्जांपल मुझे पिछले 5 साल की चाहिए एक Hmm. एक्सेल शीट में। तो हम लोग पहले क्या करते थे? 5 साल के एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करते थे और उसको कॉपी पेस्ट कर करके एक्सेल शीट में डालते थे। आपको मेरी Hmm. 5 मिनट। तो इसके लिए अलग अलग टूल्स लगते हैं मैडम जी। Hmm. आज से 6 महीने की पहले बात करता हूँ। आज तो नॉर्मल एआई भी कर पाएगा, मैं दिखाऊंगा कैसे करता है। पर 6 महीने पहले मैं आज ये जब लेता था ये वाला लेक्चर्स, तो उसमें मैं एक टूल यूज करता था। वो टूल क्योंकि राइट टूल फॉर राइट यूज, मुझे काम कैसे निकलवाना है, और राइट टूल फॉर राइट यूज। तो राइट टूल फॉर राइट यूज में एक जेनस्पार्क एआई करके टूल है, जिसका Right. हेडक्वार्टर जिसका हेडक्वार्टर जापान और यूएस में है, और एक सिंगापुर में है। ये तीनों जगह पे उसका हेडक्वार्टर है। Hmm. जेनस्पार्क एआई जैसे चैट जीपीटी है, वैसे जेनस्पार्क एआई है। जेनस्पार्क एआई क्या है? वो सुपर एजेंट्स है। उसको मैंने एक पर्टिकुलर, मैंने चैट जीपीटी में गया, मैंने उसको कुछ क्वेश्चन प्रॉम्प्ट डाला, तो वो मुझे आंसर ही देगा। वो मेरे बिहाफ पे काम नहीं कर पाएगा। उसके पास ब्रेन है पर हाथ पैर मुंह और आंख नहीं है, उसके पास ऐसे टूल्स नहीं है। तो सुपर Hmm. एजेंट्स क्या होते हैं मैडम जी? कि भाई उसके पास ब्रेन के साथ साथ हाथ पैर और आंख भी, ऐसे टूल्स भी है। तो अगर ब्रेन के साथ ये टूल्स मिल जाते हैं तो मैं थोड़ा काम कर पाऊंगा।
एक बार मैंने ब्रेन को बता दिया तो ब्रेन अपने आप हाथ चलाएगा, अपने आप पैर चलाएगा, अपने आप देखेगा, अपने आप बोलेगा, यानी वो ब्रेन काम करवाता है। वैसे ही सुपर एजेंट्स में क्या कर सकते हैं, सुपर एजेंट को एक बार आपने बता दिया कि भाई मुझे ये 5 साल के रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है? इन एक्सेल शीट 5 साल हुँ, का रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। बस इतना अगर मैंने उसको एक बार बता दिया तो वो अपने आप वेब वेब सर्च करेगा, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके उसमें से डेटा पूरा एक्सट्रैक्ट करके मुझे एक एक्सेल शीट बना के देगा। मैं ओके। दिखा, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? येस, येस, ऑफ कोर्स। मुझे बताना अगर स्क्रीन दिख रही है ना आपको। या, या, ये जेंसपाक एआई है। ये जेंसपाक एआई दिख रहा है मैडम जी? या। ओके। जेंसपाक एआई को मैंने जो आपको बताया कि मुझे रिलायंस के, ये देखो मैंने ये सबसे पहले उसको ये बताया था, ये वाला पार्टी बनाया था, बस ये वाला जो हाईलाइट किया है मैंने, मेक फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबल डेटा ऑफ द लास्ट 5 years ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया इन एआई शीट। एआई शीट मींस जेंसपाक के पास अलग अलग टूल्स है। अगर आपको स्लाइड्स बनानी है तो उसका अलग टूल। आप अगर जेंसपाक नॉर्मल एआई में जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये जेंसपाक मेन है। ये जेंसपाक क्या है? जेंसपाक सुपर एजेंट्स है। अगर मुझे ये दिख रहा है आपको एआई स्लाइड्स, अगर मुझे स्लाइड्स बनानी है तो ये वाला एआई मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मेन ब्रेन है। ये जो नॉर्मल अभी दिख रहा है आपको वो मेन ब्रेन है। अगर मैं उसको बोलूंगा कि शीट बना के दे तो ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा, शीट बना के देगा यहाँ ये वाला। पर आई कैन गो डायरेक्टली इनटू एआई शीट इफ आई वांट टू मेक इट, देन आई कैन सिलेक्ट दिस वन टू। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? अगर स्लाइड्स बनानी है तो स्लाइड वाला टूल यूज करना है, एआई शीट बनानी है तो एआई शीट वाला, डॉक्यूमेंट जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो वर्ड डॉक्यूमेंट, कोई वेबसाइट बनानी है तो ये वाला, कोई डिजाइन करनी हो, मुझे आर्किटेक्ट का डिजाइन करना हो, मुझे ब्रोशर्स का डिजाइन करना हो, मुझे पोस्टर का डिजाइन करना हो, वो सब कुछ यहाँ पे एआई डिजाइनर काम करके देगा। ये नॉर्मल चैट से। ये इमेज जनरेट करनी हो तो एआई, म्यूजिक जनरेट करना हो, वीडियो जनरेट करना हो, मीटिंग की नोट्स बनानी हो, जैसे वी आर इनटू राइट नाउ इन अ मीटिंग, सो मुझे मीटिंग की पूरी नोट्स बनानी है तो ये वाला एजेंट लगेगा। पूरा ये जेंसपाक सुपर एजेंट से अपने आप को डिसाइड करेगा और अपने आप जो भी टूल्स है वो डिसाइड करके यूज करेगा। हुँ, तो ये जेंसपाक एआई में मैं गया और उसको बोला कि भाई मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबल डेटा ऑफ द लास्ट 5 years ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन इंडिया एआई शीट। तो अगर आप देखोगे ये पूरी मुझे एक गूगल शीट जैसे शीट बना के दी है उसने मुझे। मैं एक फुल स्क्रीन कर रहा हूं, इसका फुल स्क्रीन करूंगा तो और अच्छे से ये परफेक्ट, दिख येस। रहा है आपको? हाँ जी। ओके, मैं आपको बैलेंस शीट सबसे पहले जाऊंगा। तो उसने मुझे ये 5 साल की कंपेरेबल बैलेंस शीट बना के दे दी, जो मेरा मेरा स्टाफ बैठ बैठ के 3-3 4-4 दिन सिर्फ और सिर्फ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैदर करने में लगा। और उसने कितने हुँ, कितने मिनट में कर दिया? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। वॉव! तो ये पूरा 5 साल का डेटा उसने गैदर किया, फिर इनकम स्टेटमेंट भी बना के दिया। मैंने तो उसको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला था, तो मुझे लग रहा था कि भाई वो बैलेंस शीट और इनकम बना के देगा, पर उसने साथ साथ में इनकम स्टेटमेंट के साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना के दी। हुँ, तो 3 चीज कर दी उसने। और फिर एक मिनट, ये हाइड कर रहा हूं, हाँ। और फिर क्या, मैंने उसको बताया, ये जो देख रहे हो आप वो वाली पूरी लास्ट चैट है। पर उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई मुझे तो इतना पता है कि भाई अगर किसी इंडस्ट्री का मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो मुझे क्या पता होनी चाहिए? रेशियोज। क्या पता होनी चाहिए? रेशियोज। रेशियोज़, रेशियोज का या, कैलकुलेशन करना होता है। तो मैंने उसे बताया कि भाई तू रेशियो का कैलकुलेशन करके भी मुझे दे। तो उसने ये रेशियो वाली शीट भी बना के दी मुझे, देखो फाइनेंशियल रेशियो वाली। हुँ, ये अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये आपको दिख रहा हो, तो ये पूरा किसके साथ बनाया उसने? फॉर्मूला के साथ बनाया है। वॉव! तो ये पूरा उसने जो भी रेशियो, शायद मुझे कोई कोई रेशियो तो पहले पता भी नहीं थी। हम लोग सीए है तो हम लोग को थोड़ी थोड़ी पता होती है कि डेट टू इक्विटी, डेट टू असेट, इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट हुँ, कवरेज रेशियो, ये सब हमें पता थी। हुँ, डेट सर्विस कवरेज बोलो, पर दूसरे जो ये वाले रेशियो है, डेज इन्वेंटरी आउटस्टैंडिंग रेशियो, ये सब हमें भी नहीं पता थी। तो हुँ, उसने अपने हिसाब से कैलकुलेट मुझे करके दिया। ऑसम, फिर उसने ऑटोमेटिकली, मैंने उसको नहीं बोला था, उसने ऑटोमेटिकली रेशियो का वैल्यूएशन करके भी दिया। ओके, और वैल्यूएशन करने के बाद आप देख रहे हो इधर फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर कार्ड उसने मुझे बना के दिया कि भाई लिक्विडिटी इज 8% स्ट्रॉन्ग, यानी हुँ, 80% स्ट्रॉन्ग, 8 है आउट ऑफ 10। हाँ, हाँ, तो पूरा फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर कार्ड बना दिया। और कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता, फॉर एग्जांपल आप सीए नहीं हो और आप थोड़ा सा हुँ, फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं हो, तो आपको तो क्या चाहिए कि भाई मुझे तो इतना ही पता चलनी चाहिए कि भाई मुझे एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता। तो उसने एक नॉर्मल लैंग्वेज में मुझे बताया कि इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशन। हुँ, फिर मैंने, अभी तक मुझे पता थी कि भाई हाँ
कि हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज भी ढूंढ पाएंगे। हाँ, इतना पता थी कि फंडामेंटल वैल्यूएशन में, फिर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको मैप अप बना दिया। जितना मुझे पता थी उसको पूछा, फिर मैं उसको मैप बना दिया कि भाई अभी जो भी तुझे करना है, मुझे पूरा फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री करना है, तू मुझे करके दे। तुझे जो भी करना है उसके लिए जो भी स्टेप्स लगते हैं, स्टेप वाइज बना के तू अपने आप लगा और मुझे पूरा कैलकुलेट करके दे। तो आपको पता है मैडम जी उसने क्या करा? उसने अलग से वैल्यूएशन मॉडल्स बनाए। वैल्यूएशन मॉडल्स, जो मुझे ये इसमें वैल्यूएशन मॉडल्स के हमको थोड़े थोड़े नाम आते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग ने काम किया हुआ है, पर इसमें से डिस्काउंटेड कैश फ्लो समझ में आता है सीए को। पर ये जो सम ऑफ द पार्ट्स है और दो चार वैल्यूएशन मॉडल्स नीचे, वो तो मुझे भी समझ में, मैंने नाम ही पहली बार सुना था। क्यों? क्योंकि इतने सारे मॉडल्स भी वैल्यूएशन के अवेलेबल है इन द मार्केट में, उसको नॉलेज है, उसको 30 साल का एक्सपीरियंस है, उसको नॉलेज है। और ये वैल्यूएशन मॉडल किस हिसाब से लगते हैं? अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से लगते हैं। जो उसकी इंडस्ट्री हो उसके हिसाब से, रिलायंस की इंडस्ट्री हिसाब से अलग अलग वैल्यूएशन मॉडल्स लगते हैं। तो उसी ने सोचा कि मेरी रिलायंस इंडस्ट्री में कौन से वैल्यूएशन मॉडल्स मुझे कैलकुलेट करना चाहिए, और उसने सोचा और ये चार नाम दिए, और चार नाम उसने अलग अलग वैल्यूएशन मेथड से पूरा कैलकुलेट करके दे दिया। दिख रहा है मैडम जी आपको पूरा? यस, यस। और साथ में वेटेड एवरेज करके दिया और टारगेट प्राइस भी मुझे बता के दिया ये। ओके, फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मैंने उसको बताया था, मैंने उसको माय बाप बनाया था। ये वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से क्या बोल रहा है वो कि सेल करो, उसने ये बताया। क्योंकि आई एम जस्ट नॉट, इफ आई एम अ नॉर्मल पर्सन, तो वो मुझे क्या बताएगा कि भाई हाँ, अगर तू नॉर्मल पर्सन है तो तुझे तो इतनी ही समझ आनी चाहिए कि भाई, मुझे कितनी समझ आनी चाहिए कि वेदर आई शुड बाय, सेल और होल्ड। क्या करूं मैं? बाय, सेल और होल्ड। तो उसने मुझे सेल का ऑप्शन दे दिया एज पर वैल्यूएशन मॉडल। रेशियो मॉडल में अलग था, पूरा फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर कार्ड था। और वैल्यूएशन मॉडल से उसने बताया कि भाई वैल्यूएशन इतना अच्छा नहीं है, तो यू शुड सेल करंट मार्केट प्राइस। जब मैंने कैलकुलेट किया था उस हिसाब से, फिर फिर मैंने उसको माइंड अप बनाया था कि भाई तू और कुछ कर। तो उसने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके दिया पूरे रिलायंस का, टाटा के साथ, ओएनजी के साथ, इंडियन ऑयल, पूरा मार्केट कैप, एवरीथिंग व्हाट एवर रिक्वायर्ड उसने करके दिया मुझे। और स्वॉट एनालिसिस करके दिया मुझे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, पूरा की स्ट्रेटेजी। और साथ में सिर्फ और सिर्फ पूरी रिलायंस इंडस्ट्री का नहीं किया, उसने सेगमेंट वाइज भी एनालिसिस करके दिया मुझे कि भाई मेरी इंडस्ट्री में तो बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स है, तो स्पेसिफिक डोमेन के साथ कंपेयर होगा, तो उसने कंपेयर करके दिया सेगमेंट वाइज। वाओ। फिर लास्ट में भाई मुझे ये सब समझ में नहीं आता है भाई, तो मुझे समझ में क्या आता है? तीन चीजें, वेदर आई शुड बाय, सेल और होल्ड। तो होल्ड। उसने मुझे लास्ट में एग्जीक्यूटिव समरी दे दी कि भाई पूरा मिला के जितना भी हम लोग ने काम किया उसका मतलब है होल्ड। और ये बेस्ड है कि बाकी सारा जो एनालिसिस इसने किया पहले, रेशियो, वैल्यूएशन, उस सबके बेसिस पे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे क्या बताया था उसमें वैल्यूएशन में? सेल। पर एज पर नॉर्मल रेशियो कैलकुलेशंस वो बताता होगा कि भाई बाय करना चाहिए। तो उसने एवरेज किया। एवरेज भी उसने ऐसे ही किया कि भाई वैल्यूएशन का जो वेट रहता है वो अलग रहता है, और रेशियोज का अलग वेट रहता है ना। पूरा जो भी हम लोगों ने सेगमेंट वाइज का भी एनालिसिस उसने किया, और उसका पूरा एवरेज करके वेटेड, वेट अलग अलग वेट दिए होंगे उसके हिसाब से। और मैंने उसको देखा भी था कि अलग अलग वेट उसने कैसे दिए। तो वो हिसाब से उसने मुझे ये होल्ड बताया। जो ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आप देखने चाहो तो, पर फिर भी मुझे ये तो शीट है, तो शीट में मुझे नॉर्मल पीपल को अगर मुझे सेंड करना हो कि भाई यू शुड डू दिस, तो वो नॉर्मली जनरली आई सेंड इन पीडीएफ। तो मैंने उसको बताया कि भाई तू पीडीएफ मुझे कैलकुलेट, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड ना, इसको मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश लेटर कर। तो मैंने उसको बताया कि भाई ये सब कुछ तो ठीक है, तू मेरा नाम डाल दे कि प्रिपेयर्ड बाय सीए शैलेश पडवानिया, वो इज एक्सपर्ट इन दिस फाइनेंस डोमेन। ओके। और एक पीडीएफ जनरेट करके दे कि विच पीडीएफ आई कैन सेंड टू माय इन्वेस्टर्स, मेरे क्लाइंट को मैं भेज पाऊं। जैसे बड़े बड़े मोतीलाल ओसवाल जी, फिर शेर खान, बड़े बड़े वो एक रिपोर्ट जनरेट नहीं करते अलग अलग से, वो राइट। अलग अलग से किसी जो सेंड करते हैं रिसर्च रिपोर्ट्स हम लोगों को, वैसे ही उसने एक बड़ी सी रिपोर्ट बना के दी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ सेकंड, ये दिख रहा है। यस। नॉर्मल पीपल को मैंने क्या सेंड करना है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, प्रिपेयर्ड बाय सीए शैलेश पडवानिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दिख रहा है ये? ओके। हाँ। और इसमें यस। पूरा एग्जीक्यूटिव समरी,
कंपनी ओवरव्यू, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो बड़ी रिसर्च रिपोर्ट में होता है वो सब उसने डाल के दे दिया मुझे, जो जो उसने वो कैलकुलेट किया था, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेवरेज, पूरा सेक्शन 3 बिजनेस सेगमेंट एनालिसिस, हम्म। और लास्ट में ये पूरा स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ दिखाने के बाद वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी करके उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया, रिस्क, ये बहुत बढ़िया है, रिस्क एनालिसिस उसने किया। रिस्क एनालिसिस करने के बाद उसमें रेकमेंड कर दिया कि भाई व्हाट यू कैन डू एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर, होल्ड, यू कैन डू दिस। वाओ। तो ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, ये पूरा जीरो टू हीरो, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल जी है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो आज करते हैं वही उसने आपके सामने करके दिया। जेंस पाप थोड़ा पेड वर्जन आपको लेना पड़ेगा, हम्म। मैंने ये जो काम करके देगा आपने देखा, इसको डाउनलोड करके आई कैन सेंड इट टू डायरेक्टली, इसको फैक्ट चेक भी कर सकते हो आप, इसको डाउनलोड करो, राइट। और इसका जैसे मैंने आपको बताया एआई शीट का अलग उसका टूल है, वैसे उसका टूल है फैक्ट चेक एंड प्रूफ रीड। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने बनाया तो उसका फैक्ट चेक मैं दूसरे के पास करवाऊंगा तो ये पूरा वापस से फैक्ट चेक करके देगा, और इतना हम्म। अच्छा सा देगा जो मेरी 50 जनों की टीम होगी वो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगी, पर ये करके दे देगा। यस। बात कर रहा हूँ 6 महीने पहले की, आज का ये तो इतना आगे बढ़ चुका है जो इतना अच्छे सा विदाउट हेलुसिनेशन इज डूइंग इट। हम्म। हम लोग ने इसके क्या अंदर सीखा, आपने हाउ डिड यू डू द प्रॉम्प्टिंग ऑफ दिस, जो आपने अभी एनालिसिस मैंने की बताया ना, आफ्टर? बस वैसे ही मैंने आपको बताया ना कि भाई मुझे 5 साल का चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तक मुझे समझ में आता था उसको बताया कि भाई रेशियो एनालिसिस कैलकुलेट करके दे, फिर मैंने उसको माय बाप बना दिया कि डू ऑल द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन इन एआई शीट एनालाइज टू एनालाइज फंडामेंटल एनालिसिस, ओके। लाइक रेशियो एनालिसिस, ये पता थी मुझे तो उसको बोल दिया, एंड अदर ऑल क्या बता दिया, ऑल अदर रिक्वायर्ड थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन टू हैव फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक। बाकी सब उसने ही किया, मैंने कुछ नहीं किया। एंड ऑल द रिपोर्ट्स एंड ऑल इट ऑटोमेटिकली उसने जाके लिए या फिर आपने प्रोवाइड किए थे? उसने सब कुछ किया, ये प्रॉम्प्ट है, इतना समझ लो, मैंने सिर्फ उसको इतना ही बताया, और लास्ट में मैंने उसको बताया कि भाई ये रिपोर्ट तू मुझे पीडीएफ में दे, इतना ही बताया और कुछ नहीं बताया। वाओ। तो इसने खुद जाके सारे रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, सारे स्टेटमेंट्स लिए, खुद एनालाइज किया, खुद सारा शीट बनाया और उसके बाद उसे पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके दे दिया जस्ट बाय सिंपल प्रॉम्प्ट। यस यस, जस्ट बाय सिंपल प्रॉम्प्ट। वाओ, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ ऑन टू टेक्निकल एनालिसिस की फंडामेंटल्स में हम समझ गए, फिर टेक्निकल एनालिसिस में कैसे एआई ट्रेडर्स को हेल्प कर रहा है। ओके, तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो अभी टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बताया था, कभी टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, जो मेरा हिस्टोरिकल डेटा है उसको अलग अलग मैथमेटिशियंस अलग अलग मैथ्स के फॉर्मूलाज से, जो मैथ्स फॉर्मूलाज कोडिंग लैंग्वेज में होते हैं जनरली, वो कोडिंग में कन्वर्ट करके हम लोग उसको सॉफ्टवेयर थ्रू या फिर कोई अलग से कोडिंग लैंग्वेज थ्रू, जनरली कोडिंग लैंग्वेज थ्रू, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पीछे कोडिंग लैंग्वेज ही यूज करते होते हैं, तो अलग अलग फॉर्मूलाज अलग अलग लोगों ने बनाया हुआ है, उसमें से बड़े बड़े एल्गोरिथम्स जो लोगों की पूरी जिंदगी निकल गई है, पूरी पूरी जिंदगी निकल गई है, वो जिंदगी निकलने के बाद वो एल्गोरिथम्स वो बना पाए, एक मैथ्स का फॉर्मूला बनाने में लोगों की जिंदगी निकल चुकी है, और वो मैथ्स के फॉर्मूला इतने अच्छे होते हैं कि दे गॉट द नोबेल प्राइज। उस काइंड ऑफ फॉर्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट, बस वो फॉर्मूलाज को एक कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उसी को एल्गोरिथम्स बोलते हैं जनरली। या। जनरली आप नॉर्मल नॉर्मल इंसान को समझाने के लिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं, तो वो जो एल्गोरिदम्स रहते हैं, अगर एक बार मुझे पता चल गई कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री है, उसको अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है अगला 3 दिन, तो कौन सा एल्गोरिदम लगेगा, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एल्गोरिदम्स ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, या। मुझे पता होनी चाहिए कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री के लिए या फिर टाटा के लिए या फिर कोई अलग इंडस्ट्रीज के लिए, अलग अलग टाइप्स की इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा एल्गोरिदम वर्किंग गुड फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस, फॉर एग्जांपल प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो मैं क्या करूंगा, वो जो एल्गोरिदम है कहां से ढूंढूंगा, मैं तो चैट जीपीटी को जाके पूछूंगा, बात करूंगा उससे कि भाई ये रिलायंस इंडस्ट्री है, उसका टेक्निकल एनालिसिस करना है मुझे और प्रिडिक्ट करना है अगले 3 दिन का, तो तू मुझे सजेस्ट कर कि कौन सा एल्गोरिदम्स अच्छा रहेगा मुझे प्रिडिक्ट करने में, और कौन सी कोडिंग लैंग्वेज मुझे बढ़िया काम करके देगी। तो मुझे राइट। सजेस्ट करेगा कि भाई जावास्क्रिप्ट है, गो है, पाइथन है, पाइथन, वो पाइथन भी यू कैन कैलकुलेट थ्रू पाइथन, पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट सोर्स, बहुत ओपन सोर्स अवेलेबल है अलग अलग एल्गोरिदम्स, तो मुझे बताएगा कि भाई बेटर टू यू फॉर रिलायंस इंडस्ट्री बेटर टू यूज पाइथन कोडिंग लैंग्वेज, और पाइथन कोडिंग लैंग्वेज में ये वाला एल्गोरिदम्स,
वो नाम देगा मुझे। तो मुझे उसने पहले बहुत सारे नाम दिए, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो 2-3 लगा रहा था, दिमाग में था मेरे कि भाई विच एल्गोरिथम्स बेस्ट टू यूज। उसने बहुत सारे नाम देते गए। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट्स किया, तो सबसे अच्छा मुझे एल्गोरिथम लगा वो LSTM, जो बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक यूज करती थी। हम लोग यूज नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स नहीं थे और नॉलेज नहीं थी कि भाई दे आर अवेलेबल इन अ फ्री एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। Hmm. ओपन सोर्स है। तो वो नॉलेज आज मुझे 2 मिनट में चैट जीपीटी दे रहा है। बस मुझे उसको एक्सपेरिमेंट करते, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट्स किया बहुत सारे एल्गोरिथम से अलग अलग। तो मुझे लास्ट में समझ में आया कि भाई इफ आई वांट टू प्रेडिक्ट द रिलायंस इंडस्ट्री फॉर नेक्स्ट थ्री डेज, के बाय टेक्निकल एनालिसिस होनी है। टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल अभी पूरा हो चुका है। तो Hmm. Hmm. टेक्निकल एनालिसिस से ही मुझे प्रिडिक्ट करना है, तो कौन सा बेटर रहेगा। तो उसने मुझे LSTM एल्गोरिथम्स दिया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी, LSTM। वो इतना बढ़िया एल्गोरिदम है कि दे आर द फाउंडेशन ऑफ बिकमिंग AI। जो आज का AI हम लोग दिख रहे हैं, दैट एल्गोरिदम कंसिडर टू बी वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ टुडेज AI। इतना बढ़िया एल्गोरिदम है, जो पहले बड़ी बड़ी बैंक्स यूज करती थी। हम लोग क्यों यूज नहीं कर पाते थे? क्योंकि वो हमारे लैपटॉप में इतनी जगह भी नहीं रहती थी कि उसको डाउनलोड करके हम लोग हमारे लैपटॉप में यूज कर पाए। Hmm. क्योंकि उसके लिए बड़े बड़े कंप्यूटिंग पावर लगते हैं, नॉलेज लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं। पर मुझे अगर सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए, अगर एआई वर्ल्ड में आगे बढ़ना है तो मुझे काम कैसे निकलवाना है, और राइट टूल फॉर राइट यूज। आज इतने सारे मार्केट में टूल्स अवेलेबल है जो ज्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट में और $10 और $20 में मिल जाते हैं। Absolutely. Yes. हाँ, तो गूगल का एक टूल है राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट टूल फॉर राइट यूज। नाउ गूगल का एक टूल है, जैसे जेंसपाक बात की अभी, कैलकुलेट करने के लिए राइट टूल फॉर राइट यूज, एल्गोरिदम कैलकुलेट करने के लिए राइट टूल फॉर राइट यूज क्या है। तो गूगल का एक टूल है गूगल कोलैब, गूगल COLAB, गूगल कोलैब। अभी गूगल कोलैब क्या है, उसने मुझे बताया कि पाइथन से यू कैन कैलकुलेट। तो मुझे पाइथन नहीं आता है। Hmm. इधर आई कैन रन पाइथन इन माय लैपटॉप, वही बताएगा मुझे कैसे रन करना है। तो मुझे नहीं आता, तो मैं उसको बताऊंगा अभी कैसे रन करना है, इसको क्या क्या सीखना है मुझे। तो 10-15 मिनट में सिखा देगा आपको कि भाई वो रिक्वायर्ड स्टेप सिखाएगा। पूरा डिटेल में तो नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि पाइथन का एक एक ओपन, खाली एक एक लैंग्वेज लिखने में, एक एक खाली कोडिंग, जो ओपन सोर्स छोटे छोटे एल्गोरिथम जो रहते हैं वो लिखने में लोगों की लाइफ गई हुई है, लाइफ का काम किया है उसने। तो मुझे खाली स्टेप्स बता देगा कि भाई नॉर्मली इफ यू वांट टू डू प्रिडिक्टिव एनालिसिस फॉर 3 days, यू डू दिस स्टेप्स। वो स्टेप वाइज मुझे बता देगा। एक बार उसने मुझे स्टेप वाइज बता दिया, फिर मुझे उससे बाहर नहीं जाना है, वैसे ही काम करना है। कुछ भूल होती है तो उसको जाके वापस से पूछना है कि भाई यहाँ पे कुछ भूल हो रही है, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, तो वापस से वो स्टेप रिवाइज करके देगा अपने हिसाब से। और वो स्टेप्स मुझे 2-4 बार फॉलो करते रहने, और एक टाइम ऐसा आएगा, आधा आधा 2 घंटा 3 घंटे में एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई वो स्टेप्स आपसे रन हो जाएंगे। Hmm. फर्स्ट स्टेप में ही रन हो जाएगा, क्योंकि आज का इतना पावरफुल है कि वो समझ चुका है कि कैसे स्टेप इंसान को समझ में आते हैं। Yeah. तो वो स्टेप्स मुझे रन करने हैं। तो ना अभी, तो ये जो LSTM मॉडल्स मुझे रन करना है मेरे लैपटॉप में, तो रन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटिंग पावर चाहिए। तो गूगल का कोलैब, गूगल के जो बड़े बड़े सर्वर्स रहते हैं, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने को दे रहा है। कहाँ पे? Hmm. अभी थोड़ा पेड कर दिया लास्ट 2-3 महीने से, पर फिर भी वी कैन यूज इट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको 2.5 यूज करना है, जेमिनी 2.5 जो ओल्ड मॉडल है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। पर आपको 3.0 प्रो यूज करना है तो आपको पे करना पड़ेगा, प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, $20 सब मुझे पता नहीं कितना है, पर उतना पे करना पड़ेगा। पर मुझे जरूरत नहीं है, राइट टूल फॉर राइट यूज। तो Hmm. अभी फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी के पास गया कि भाई मुझे ये रिलायंस का 3 डेज का सॉफ्टवेयर मुझे प्रिडिक्ट 3 डेज का प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या लगेगा। तो उसने बता दिया कि भाई ये LSTM। फिर मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बना दिया। क्या बना दिया? Prompt. प्रॉम्प्ट बना दिया। जो भी मैंने काम किया उससे पूछा और सब कुछ, मैंने एक प्रॉम्प्ट बना दिया। और प्रॉम्प्ट क्या बनाया मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर होगी ना मेरी, सैरी है ना? हाँ वापस से हाँ. करूँ? वापस Yes. से करूँ? नहीं नहीं, shared ही है. You can start. Go to the tab. ओके। Yeah. देखो ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो मैंने प्रॉम्प्ट बना दिया लास्ट में कि भाई मुझे रिलायंस का पाइथन को और LSTM मॉडल यूज करना है, और 3 दिन की रिलायंस की ट्रेडिंग मुझे निकालनी है Hmm. एज अ Right. Right. प्रिडिक्टिव एनालिसिस के। 3 दिन के प्राइस क्या क्या रहे में से तुम लाओ कोड, और वो मैं आई कैन पेस्ट इनटू गूगल कोलैब। अभी कैसे पे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर टू जस्ट रन दिस, टू हैव अ प्रिडिक्टिव एनालिसिस, और वो भी LSTM मॉडल यूज नहीं करते थे।
LSTM मॉडल, बिग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यूजिंग दिस मॉडल। तो अगर आपको ये समझना है तो और एक बार आपको वापस से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं चाहता हूं कि और थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं, पर हम लोग, मैं इतना समझा पा रहा हूं, मैंने पूरी ट्राई की है कि आपको समझ में आए। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट बना के उसको बोलूंगा कि मुझे पाइथन कोड हूं, और जाऊंगा जेमिनाई या फिर चैट, इसको मैं वो प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूंगा और सिर्फ एंटर करूंगा। थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो मुझे थोड़ी देर में पाइथन कोड जनरेट करके दे देगा। हाँ, इसने मुझे डिस्क्लेमर दिया। तो आज जो हम लोग बातें कर रहे हैं, अच्छा किया उसने मुझे याद करवाया। क्या लाइव ऑडियंस होती है तो मुझे याद करवाती है, तो हर बार Yes. मुझे याद करवाती है कि भाई आर यू अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंस एडवाइजर। मैं बोलता हूँ नहीं, और जब भी थोड़ा सा कोई भी याद करवाता है तो तब मैं बता देता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंस एडवाइजर। Yes, yes, it's very ओके, important. ये Yes. वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ये, आई एम जस्ट गिविंग यू यू नो, आपको इंटीमेट कर रहा हूँ कि आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर। तो बस जो मेरी जो भी बातें हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही लेना। ओके, तो Yes. उसने मुझे पाइथन कोड जनरेट करके दिया। तो ये आपको दिख रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर वो फिर थोड़ा, अगर मुझे उसने नहीं दिया है स्टेप्स, तो उसको मैं बताऊंगा कि भाई प्लीज गिव मी अ स्टेप टू रन दिस कोड इनटू गूगल कोलैब। तो वो देगा मुझे, पर मैं जानता हूं कैसे रन करना है स्टेप वाइज। तो मैं क्या करूंगा, ये पाइथन कोड है, उसको कॉपी करूंगा इधर से। कॉपी करने के बाद मैं कहा जाऊंगा, गूगल कोलैब। गूगल कोलैब में जाऊंगा, और गूगल कोलैब में जाने के बाद न्यू नोटबुक क्लिक करूंगा। जैसे ही नोटबुक क्लिक करूंगा तो नई नोटबुक ओपन हो जाएगी। कौन सी वाली? अभी गूगल कोलैब है एक्चुअली में क्या, वो गूगल कोलैब एक पाइथन प्लेग्राउंड है। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के लिए मुझे प्लेग्राउंड में जाना पड़ेगा, वैसे अगर मुझे पाइथन के साथ खेलना है तो पाइथन के लिए देयर आर सो मेनी टूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। वन ऑफ द टूल व्हिच इज गिवन बाय गूगल एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्ड गूगल कोलैब। मैं पाइथन के साथ खेल सकता हूं। तो वो जो कोड मैंने चैट जीपीटी से या जेमिनाई से कॉपी किया हुआ है, मुझे इधर ये वाला स्टार्ट कोडिंग लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करके पेस्ट करना है। क्या करना है? पेस्ट करना है। और ये जो प्ले वाला बटन है, प्ले वाला, Hmm. बस उसको एक बार प्ले करना है, वो मुझे कैलकुलेट करके दे देगा पूरा। Hmm. ये वाला कोड आज जनरेट किया है, पर शायद उसमें कोई एरर आती है, तो उसको, अगर एरर आती है तो उसको वापस से कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और जेमिनी में जाना है और उसको बोलना है कि भाई ये इसमें एरर आ रही है, तो इसको वापस से मुझे पूरा कोड दे और अच्छा वाला कोड दे। देखो Wow. ये पूरा काम कर रहा है, 100 बारी काम करेगा वो, 100 बारी। इतना बढ़िया मॉडल है कि इसके लिए मुझे बड़े बड़े कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए। तो गूगल का ये काम कहाँ कर रहा है? गूगल के सर्वर में काम कर रहा है। जैसे जेमिनी को मैं प्रॉम्प्ट करता हूं तो जेमिनी है कहाँ पे? गूगल के सर्वर में, और वहां से आंसर यहाँ पे दे रहा है हमारे लैपटॉप पे, हमारे स्क्रीन पे। सेम वैसे ही ये काम कहाँ पे कर रहा है? अभी पाइथन कोड रन कहाँ पे कर रहा है? मेरे लैपटॉप में रन नहीं कर रहा है, ये रन कर रहा है गूगल के सर्वर में। अगर आप देखना Hmm. चाहो तो गूगल ने मुझे ये 12 GB रैम ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने को दी मुझे, उस वजह से Okay. अभी 2 GB तक यूज हो रही है। ये पूरा पूरा मुझे सर्वर दे दिया, पूरा एक अलग से पाइथन रन करने के लिए पूरा सा एक लैपटॉप दे दिया कि यू कैन रन इट। Wow. देखो उसने मुझे प्रिडिक्ट करके दे दिया कि भाई टीसीएस का अगर तुम्हें चाहिए तो नेक्स्ट 3 डेज में ये हो सकता है। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं चार्ट भी बना के दे दिया। Hmm. Wow. ये पूरा अल्गोरिथमिक वर्क कर रहा है पूरा। ये कोड है पूरा, पूरा अल्गोरिथम का कोड है। सिर्फ इतना कोड Hmm. नहीं है ये कोड इतना नहीं है। इसके पीछे वो टूल कॉल कर रहा है जो एलएसटीएम मॉडल है, वो रन करेगा गूगल के सर्वर। और उसने मुझे पूरा प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके दे दिया। ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर आप यूट्यूब पे डालने वाले हो तो एक बार और जाके देखना, जिससे आपको और अच्छे से स्टेप आ जाए। तो मुझे Hmm. बस इतना मिल गया, और क्या चाहिए इंसान को। Yes. दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट कंसिडर एज अ एडवाइस। Yeah. ओके, तो ये Perfect. टेक्निकल एनालिसिस हुआ। और भी Yes. है, पर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, शायद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे करेंगे। पर अभी इतना रखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो मैंने आपको क्या सिखाया? फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। यस मैम, ओवर टू यू। यस सो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे पर्सनली। मैं अगर बताऊं, आई डोंट नो अबाउट द ऑडियंस, बट मुझे मैं समझती थी मुझे आई एम यूजिंग एआई इन माय जर्नी, बट नाउ आई फील कि देयर इज अ लॉट टू लर्न। सो मैंने आज फंडामेंटल जेनस्पार्क के बारे में सीखा। आई लर्नड अबाउट कोलैब टूल, जिसके अंदर हम सिंपल एक कोड रन करके वी कैन डू एनालिसिस। सो दिस इज समथिंग न्यू दैट आई लर्न। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज और विजडम। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। एंड जैसे सर ने स्टार्टिंग में शेयर किया था कि
पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए अबाउट एआई. डोंट बी अफ्रेड ऑफ एआई एंड सीखते जाओ, अपग्रेड करते जाओ. सो अगर आपको इस एपिसोड में से नया कुछ सीखने को मिला, मुझे प्लीज कमेंट्स में बताओ. एंड विल डेफिनेटली कम अप विथ अनदर एपिसोड जिसके अंदर हम सेंटिमेंट एनालिसिस, and I'm sure, sir, one thing that I learned from you was Opal tool. That was also from Google, right? So Yes, उसके yes. बारे में भी नेक्स्ट एपिसोड में हम सीख सकते हैं. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, सर. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम, योर knowledge. It genuinely means a lot to me. Any last advice or any last message that you want to give to our audience? So first of all, I would like to thank you for inviting me, and thank you all for listening me. And थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, बट धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है. आई टू गिव यू. आपको सिर्फ इतना पता होनी चाहिए कि भाई ये हो सकता है और ये कर सकते हो. जो बड़े बिग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स, मैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट अभी शेयर मार्केट में इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती थी वो आज तुम कर पाते हो. और आज का एआई आपको बिलियन डॉलर्स कमा के दे सकता है. जस्ट यू नीड टू यूज इन अ बेटर वे. और आपको पता होनी चाहिए कि राइट टूल फॉर राइट यूज क्या है. और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, पेड वर्जन यूज करिए. धीरे धीरे आपको और अच्छा सा ज्ञान आएगा. और धीरे धीरे ऐसे अलग अलग से मैडम जी के पॉडकास्ट देखते रहिए. यही मेरी एडवाइस है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मीन्स अ लॉट. एंड थैंक दैट इज यू. दिस एपिसोड ऑफ द जीनियस वर्ल्ड शो. आपने क्या सीखा, अपनी लर्निंग्स को कमेंट में डालना मत भूलना. इससे आपको भी अपनी लर्निंग्स याद रहेगी और आपकी लर्निंग से दूसरे लोग भी सीख पाएंगे. आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द जीनियस वर्ल्ड शो. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. थैंक यू. थैंक यू. बाय.